Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So till now we have discussed about some aquatic habitats like ocean, ponds and lakes. So we have discussed what how living organisms or living beings live in different habitats. But what are living beings? What are their characteristics? How we can say that something which we are seeing is live or non-living? So there are characteristics of organisms. We will start this topic 9.4, page number 86, right hand side, lower paragraph. Characteristics of organism. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. So yeah, we have walked through a journey, like in different habitats, animals and plants in different habitats. In activity 1, we listed objects, plants and animals found in different surroundings. Suppose we stop a whole and think which example in our list are living. So do you remember the activity first which we have done? We have done an activity जिसमें हमें plants और animals या कोई भी object जो हमारे आसपास हो उसको हमें उस टेबल पे लिखना था. बट एक बार अगर हम रुके और उन एग्जाम्पल्स को देखें तो हम उसमें से क्या बता सकते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है. Let us think of examples from a forest. Trees, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that is present in the forest. Which of these are living? अब इतने सारी चीज़ों की हमने बात करी फॉरेस्ट में. ट्रीज हो गया, क्रीपर्स हो गया, इंसेक्ट, स्नेक, रॉक, सॉइल, वाटर. इनमें से क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है? ठीक है. Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. In some cases, it is easier for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. Paheli was reading his rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lear. So, हमने ये चीज़ देखी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास है वो हम उनको ग्रुप करें लिविंग और नॉन लिविंग में. ठीक है. इन सम केसेस इट इज़ ईजियर फॉर अस टू नो. बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईजी है हमारे लिए. मतलब अगर हम देखें हमारे आसपास, तो अगर हमारे आसपास बर्ड्स हैं या कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई प्लांट है तो हम उसे लिविंग बोल सकते हैं. बहुत सारे केसेस में ईजी होता है. पर कैसे हम लोग देखें कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है. सो पहले एक पोएम पढ़ रही थी. ठीक है. आई विल रीड दिस पोएम. Set the table to the chair, you'll hardly be aware how I suffer from the heat and from the chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air. Set the table to the chair. Set the table to the chair, now you know we are not able. How foolishly you talk when you know we can't walk. Set the table with the sign, it can do no harm to try. I have as many legs as you. Why can't we walk on two? तो ऐसे ही चेयर और टेबल आसपास में बात कर रहे थे तो उनकी पूरी पोएम है. Paheli and Bujo found the poem very funny because they know that a chair and table is not alive and it cannot walk or talk or walk. तो पहेली और बूजो को इस चीज़ पे बहुत हंसी आई कि यार कैसी सी पोएम है जो चेयर और टेबल है दोनों नॉन लिविंग है, आपस में बात कैसे कर सकते हैं, वॉक कैसे कर सकते हैं. चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव. सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल अराउंड. चेयर और टेबल, स्टोन, कॉइन ये सब नॉन लिविंग है. ठीक है. और हम ये भी जानते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं आसपास वो सब लिविंग है इस वर्ल्ड में. वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस that are so full of life. Dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many other. तो ये चीज़ें हमें पता है कि हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसमें लाइफ है, जो लिविंग है. जैसे हो गया डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्विरल, इंसेक्ट्स. ये सारी चीज़ें लिविंग है. हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड. वी आर टोल्ड दैट प्लांट आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन. अब हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है?
ये चीज़ हमें लोग बता देते हैं हमारे आसपास, या हम देख लेते हैं कि चलो ये लिविंग है, लेकिन एक्चुअली में क्या ऐसी चीज़ें हमें दिखती है जिसकी वजह से हम लिविंग या नॉन लिविंग। अगर आप बोले कि ये चीज़ चल सकती है, लिविंग चीज़ चल सकती है, ठीक है, जैसे हम हो गया, मतलब हम हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गई, तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि ये लोग मूव कर सकते हैं इसलिए ये लिविंग है। लेकिन प्लांट का क्या, प्लांट भी तो लिविंग है, बट स्टिल वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। और अगर हम चलने की बात करें तो कार हो गई, स्कूटर हो गया, ये सारी चीज़ें चल सकती है ना, लेकिन स्टिल वो नॉन लिविंग है। तो हम किस कैरेक्टरिस्टिक्स, किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। प्लांट एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, बट दे एट टाइम क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सीम्स टू ग्रो इन द साइज। अगर हम साइज़ की बात करें तो प्लांट और एनिमल, चलो एक बात के लिए हम मान लिया कि कुछ टाइम तक वो ग्रो होते हैं टाइम के साथ, बट क्लाउड्स भी तो आसमान में ग्रो होते रहते हैं, तो क्या वो लिविंग है? डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? नो। सो हाउ डज वन distinguish between living and non-living things? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? बिल्कुल नहीं, क्लाउड्स बिल्कुल नॉन लिविंग नहीं होता है, ऑब्वियसली नॉन लिविंग होता है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग? क्या ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम पता कर सकें कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है? कोई ऐसा जजमेंट, कोई स्टेटमेंट हो या ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो? You are a wonderful example of living being. What characteristics do you have which make you different from non-living? List a few of these characteristics in your notebook. Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may be found in animals and plants. अब आपको क्या करना है, एक आप बहुत अच्छे, हमें पता है हम लिविंग है, तो हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है लिविंग बीइंग के। तो अब ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें पता चले कि हम नॉन लिविंग से अलग हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लिस्ट बनाएंगे अपनी कॉपी में, सारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होने के बाद या फिर क्वेश्चन आंसर्स के पहले आपको ये लिस्ट बनानी है, ओके, कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको लगता है कि आप में लिविंग है या आपको नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हो, ठीक है। ये सेम होंगे, कुछ सेम होंगे एनिमल्स में, कुछ सेम होंगे प्लांट्स में। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप जो भी लिस्ट बनाएंगे उसमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रहेंगे जो दोनों में सेम है, लिविंग में भी सेम, लिविंग में भी होंगे और एक्चुअली लिविंग में भी होंगे और मतलब एनिमल्स में भी होंगे और प्लांट्स में भी होंगे। नाउ वी आर एट पेज नंबर 88. Do all organisms need food? In chapter 1 and 2 we learn that all living organisms need food and how essential it is to animals and to us. अभी हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फूड के बिना हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर 1 और 2 पढ़ा होगा, तो उसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं कि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो बच्चों हमने ये चीज़ देखी कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। लेकिन जो एनिमल्स है वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो किस पे डिपेंड होते हैं? या तो वो प्लांट्स पे होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे होते हैं खाने के लिए, ठीक है। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड टू देम फॉर देम टू ग्रो। फूड क्या होता है? फूड क्या देता है ऑर्गेनिज्म को? एनर्जी देता है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है। इतनी सारी एनर्जी जो पूरा दिन हम काम करते हैं उसके लिए। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। ऑर्गेनिजम्स को ऐसा नहीं सिर्फ बाहर फिजिकल एक्टिविटी के लिए ही एनर्जी चाहिए, उनका खाना पचाना, ऑक्सीजन लेना, ब्लड फ्लो करना, ये सारी चीज़ों के लिए भी उनको एनर्जी चाहिए। तो फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए। सेकेंड, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? Does the kurta you had 4 years back still fits you? You cannot wear it anymore, isn't it? You must have grown taller during these years. So आपने जो कुर्ता 4 साल पहले, मान लो कोई कुर्ता, कोई टी शर्ट, कोई जीन्स 4 साल पहले आपने खरीदी उसको, ठीक है, जो आप पहनते थे, क्या आपको अभी भी फिट आती है? आप 6th क्लास में हैं, तो जब आप 2nd क्लास में थे तब आपने जो जीन्स या टी शर्ट थी वो आपकी अभी फिट आती है? नहीं आती है। क्या आप उसे वापस पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते हैं। सो या तो आप टॉल, ऑब्वियसली आप इन 4 इयर्स में टॉल हुए होंगे, आपकी हाइट बढ़ी होगी, यू माइट नॉट रियलाइज इट, बट यू आर ग्रोन ऑल द टाइम, यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट। अभी आप 6th क्लास में हैं, ठीक है,
आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आप 2-3 साल में बढ़े हैं, आपकी हाइट बढ़ी है या आपका वेट बढ़ा है या आपका फिजिकली आप ग्रो हुए कि आप ग्रो हुए हैं, बट एक्चुअली में आप इतने सालों में ग्रो हुए हैं, ठीक है। और कुछ आने वाले सालों में, इन कमिंग ईयर्स यू विल फील यू हैव बिकम एन अडल्ट, आप एक अडल्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू अडल्ट। यंग वंस जो एनिमल्स के हैं, जैसे एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो भी बड़े होते हैं, अडल्ट बनते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस पप्स ग्रोइंग इनटू अडल्ट। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, ये जो डॉग के छोटे छोटे जो बेबीज़ होते हैं उनको पपीज़ बोलते हैं, हम पपीज़ बोलते हैं ना, तो उनके जो पप्स होते हैं वो भी ग्रो होकर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ चिक हैज फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू एन हेन और अ कॉक। अब आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि छोटे छोटे जो अंडे होते हैं, ठीक है, उनमें से भी चिक निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, फिर अडल्ट बनते हैं या तो हेन या कॉक में, ठीक है। Plant also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and young. Some are bigger. They may all be in different stages of growth. अब हमने एनिमल्स की बात कर ली, अब प्लांट्स की बात। प्लांट्स भी तो ग्रो करते हैं। हम आसपास में अगर देखेंगे तो प्लांट भी ग्रो करते हैं एक्चुअली में। जैसे आप अपने आसपास देखेंगे तो अगर आपने कोई नीम का पेड़ देखा हो 2 साल पहले, आज वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। तो यही डिफरेंस होता है कि ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल्स ग्रो करें, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ आपने प्लांट्स ऐसे यंग एज में देखे होंगे, कुछ बड़े पेड़ देखे होंगे आसपास अगर आप देखेंगे तो उनकी सबकी जो डिफरेंट स्टेजेस है ग्रोथ की, कुछ अपने इनिशियल स्टेज पे है, कुछ मिडिल स्टेज पे है, कुछ अडल्ट स्टेज पे है, ओके। लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स। आप एक प्लांट लगाइए या आपको एक प्लांट नोटिस कर रहे हो तो उसको थोड़े दिन बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसके साइज में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। ग्रोथ सीम्स टू बी अ कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? आपको क्या लगता है कि ग्रोथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो ग्रोथ होगी उसमें, ठीक। तो आपको क्या लगता है कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज़ है जो ग्रो होती है? कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज़, कुछ भी ऐसा जो ग्रो होता हो? तो हम ये चीज़ मैं आपसे क्लास में डिस्कस करूँगी, ये चीज़ आप नोटिस करके रखिए अपने आसपास, ओके। So the new topic, do all organisms respire? We'll discuss it in next session. Till then, complete your work and till 4th, I hope you'll complete your work and have a nice day. Thank you.